Good evening, sir. Good evening, everyone. So, what I said, what I will start today? Impulse. Impulse. Very good, guys. You guys remember. So, you guys practicing from HC Verma and all the things. So, from today onwards, I'll allow you assignment also. Assignment of center of mass. Last phase, to actually, I not taught you properly. So, I have not assigned any assignment, but now onwards, we will assign assignment to you. Okay. So, let everyone to join. I'll wait one more minute. Okay, guys. So, before starting Impulse, I would like to ask to some question to all of you. Are you all listening now? My voice is audible to everyone? Yes, Yes, sir. Okay, guys. So, in class, in last page, we have read about force. Okay, so you guys can tell me what actually force does. First, tell me what is the basic function of force. What force does? change the state of emotion. Change the state of a body, like body at rest, force can move a body. If body in motion, force can stop a body. So these all impact of forces we already understood in last discussion. Okay. But one thing I would like to ask you, is it the force only which can change the motion, or something else which is also responsible along with force to count this impact? Only force or something else? What you want to tell? So the time, I mean the duration for which the force is acting. Very good. Actually, that I want to tell you. Suppose, guys, if I'm giving you an example, now let me share the screen to everyone. This point I'm asking to you, so that if you tell me this point, I can go through the discussion from this point only. Suppose, guys, I'm taking one block. Now, tell me first, screen is coming in front of all of you or not? Yes, Okay, guys. Now, suppose I have taken a block. This block of mass 20 kg, and I am applying force of 60 Newton. But fortunately,
actually I'm applying this force for different time interval. Like 20 kg block, I'm applying this force of 60 Newton. I'm applying for 5 seconds. And same force of 60 Newton I'm applying for 20 seconds. In which you think the impact is more, the effect is more, means the change in motion is more? Sir, for 20 seconds. 20 seconds. For 20 seconds, guys. So the force was to constant only, but its impact was decided by the time up to which it is acting. Na? So guys, impulse is something like that when a huge amount of force is acting for small interval of time. What I'm saying that when huge amount of force acting for small interval of time, that product of force into that small interval of time is impulse. So impulse is nothing but product of force and time interval. It is the product of force that is acting for small interval. It is the product of force that is acting for small interval, but its impact is significant. Like if I'm giving you an example, बच्चे जैसे आपने देखा होगा एक फास्ट बॉलर बच्चों बॉलिंग कर रहा है, ठीक है ना, और आप बैटिंग या बैट को पकड़े हुए ऐसा, और बच्चों आपका बॉल से कांटेक्ट हुआ, बॉल ने, अच्छा ये कांटेक्ट क्या बच्चों बहुत लंबे समय का होता है क्या? फास्ट, मैं हाँ, स्पिनर की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, लेकिन ये इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है आप देखते हो ना, मेहमद 6 भी आप इस बॉल से देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो दिस इज इम्पल्स, ओके। जैसे मैंने बोला बच्चों आपको कि एक बॉल है आपका 20 kg का, और इसको आपने 10 मीटर हाइट से नीचे की ओर गिराया, ठीक है ना बच्चों, 10 मीटर हाइट से नीचे की ओर गिराया बच्चों। तो जब ये टकराने वाला था बच्चों, क्या इसका टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा था टकराने के लिए क्या बच्चों? मतलब यहाँ पहुंच हाँ, गया इस टकराने बहुत इन स्मॉल इंस्टेंट, ठीक है बच्चों। मान लीजिए कि इसी आपने मतलब एक फास्ट बॉलर है जिसने एक बैट्समैन को बॉलिंग किया, और बैट्समैन ने एकदम स्ट्रेट शॉट मारा फास्ट बॉलर पे, और बॉलर ने ना मतलब अपना सर पीछे करते हुए हाथ को आगे बढ़ा दिया और कैच हो गया बच्चों। क्या उसका इंस्टेंट टाइम बहुत था क्या बच्चों? तो ये सब बच्चों शॉर्ट ड्यूरेशन वाले मतलब फोर्सेस थे जिनका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल था बच्चों। तो इम्पल्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, बट दैट टाइम एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल। तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए आपका y एक्सिस पे मैंने बना दिया बच्चों। अच्छा पहले मैं इसके पहले वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, सी कि अगर मैंने बोला कि फोर्स कांस्टेंट हो जाए बच्चों, कांस्टेंट फोर्स है 20 न्यूटन का, 30 न्यूटन का, जैसे 60 न्यूटन का मैं यहाँ पे लगा रहा था बच्चों, कांस्टेंट फोर्स है बच्चों, और टी आपका टाइम इंटरवल है। तो इम्पल्स को बच्चे क्या लिखेंगे बताओगे आप लोग? F टी into टाइम, T. आप लिखोगे सर फोर्स इंटू टी, लिखिए सर इम्पल्स। इसको बच्चों जे से डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आप लोग कुछ और नाम भी दे सकते हो बट मैं इसको जे बोलूंगा बच्चों। जे इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। अच्छा बच्चों मैंने बोला जब फोर्स कांस्टेंट है तो ये, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं हो तो बच्चों, if फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, F into T2. तो आप बोलोगे सर आपने वर्क डन में भी वेरिएबल फोर्सेस के बारे में बताया था सर, कि आप सर छोटा सा वर्क डन निकालते थे सर वहां डीडब्ल्यू, याद है बच्चों आप लोग को, एफ डॉट डी एस, और इसको सर इंटीग्रेट करते थे आप, तो आप निकाल लेते थे वहां से। सर यहाँ पे भी आपको वही करना चाहिए सर, आप एक एफ जो कि नॉट कांस्टेंट है सर उसको dt से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए सर। तो सर ये जब आपने फोर्स को dt से मल्टीप्लाई किया था सर स्मॉल, तो ये आपका था सर स्मॉल dj, और इसको इंटीग्रेट किया था तो आपका सर ये हो गया j।
तो इम्पल्स इज इक्वल टू जे इंटू टी व्हेन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। जब फोर्स कांस्टेंट हो तो बच्चों एफ इंटू टी, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं हो तो दिस। अच्छा, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स बच्चों, इफ आई आस्किंग यू सर एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स? केजी मीटर पर। तो आप बोलोगे बच्चों सर दूसरा यूनिट तो हमें दिख रहा है न्यूटन सेकेंड, बट सर थोड़ा अगर मैं और डिटेल में चलूं सर तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, केजी मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं, आपको मैं एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए बच्चों आपको, ठीक है ना। ग्राफ अगर ऐसा रहता बच्चों, ये आपका फोर्स है वाई एक्सिस पे बच्चों, और टाइम है आपका एक्स एक्सिस पे। तो ये जो एरिया आया ना बच्चों, एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया जो है आपको इम्पल्स देता है बच्चों, ठीक है ना। दिस एरिया गिव्स यू इम्पल्स। अच्छा, डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, एम एल टी माइनस वन। जे मीन्स ने पूछा है क्वेश्चन बच्चों, मोमेंटम और इम्पल्स जिसका डायमेंशन सेम होता है, बिल्कुल सही है, मोमेंटम का भी डायमेंशन एम एल टी माइनस वन होता है बच्चों। ऐसा होता क्यों है ये ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला बच्चों कि इम्पल्स जो होता है ना, वो होता है फोर्स इंटू टाइम। सुनिएगा ध्यान से, फोर्स इंटू टाइम को लिखते हैं आप इम्पल्स जे। आप वेक्टर के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हो बच्चों, टाइम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, टाइम का जस्ट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है बच्चों, ये बस मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एफ वेक्टर इंटू टी है बच्चों ये, ठीक है ना, डॉट क्रॉस नहीं है क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन है बच्चों। अब सुनिएगा, मैंने एक बात जो आपको बोली बच्चों, डायमेंशन आपने पता कर ली, आपने फोर्स के बारे में देख लिया, यूनिट इम्पल्स के बारे में देख लिया, फोर्स इंटू टाइम। कोई बच्चा बोलेगा सर हम इसको तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी लिख सकते हैं सर, एम बी माइनस यू बाई टी। सर हमने फोर्स को ऐसा लिखा, इंटू टी, टी से टी कट गया बच्चों, तो इम्पल्स इज इक्वल टू हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इसी को बच्चों इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का भी नाम देंगे बच्चों। ये बोलो सर यहाँ तो आपने फोर्स को कांस्टेंट लिया था सर, अगर फोर्स वेरिएबल होता तो क्या करते बच्चों? तो सर लिखते हम ऐसा लिखते हैं एफ डॉट डी टी। अब सर कैसे प्रूव करोगे? तो बच्चों फिर भी आसान है, एफ को मैं एम डीवी बाई डी टी लिखूंगा क्या बच्चों, एक्सेलरेशन तो डीवी बाई डी टी है यस ना, सर। इंटू डी टी, डी टी डी टी कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो एम इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, वी इनिशियल से वी फाइनल बच्चों, फिर से हो गया एम भी फाइनल माइनस एम भी इनिशियल। ये बच्चों जे इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। पहले बच्चों इसको नोट कर लीजिए, देन मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, स्टार्ट करिए नोट करना। आप लोग स्टार्टिंग से शुरू से नोट करना स्टार्ट कर देते हैं क्या बच्चों? आपको नोट करने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बच्चों, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। इफ यू अंडरस्टूड, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, स्क्रीन अभी नहीं आ रहा ना आप लोग के पास? हाँ। जस्ट अभी बंद हो गया स्क्रीन, एक मिनट बच्चों। मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ, पहले आप लोग अच्छे से नोट करिए बच्चों। इम्पल्स मोमेंटम इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इटसेल्फ आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्क्रीन आ रहा है आप लोग के सामने। यस सर। तो हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन बच्चों फोर्स से, कि सिर्फ फोर्स ही मोशन के चेंज के लिए सफिशिएंट नहीं है बच्चों, वो फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है बच्चों, वो उसके इम्पैक्ट को बताएगा। अगर कोई फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लग रहा है बच्चों तो उसका इम्पैक्ट कम होगा, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ज्यादा कर दे बच्चों तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो इस इम्पैक्ट के मेजरमेंट को बच्चों हम लोग इम्पल्स बोले थे, फोर्स इंटू टाइम। टाइम अगर बहुत स्मॉल होगा बच्चों तो अमाउंट ऑफ फोर्स ह्यूज होगा, तो प्रोडक्ट आपका इम्पल्स आपका बहुत ह्यूज होगा। अभी मैं बाद में आपको इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस के बारे में कुछ बताऊंगा, तो वो मेरे लेक्चर के लास्ट का पार्ट होगा। बट इसके पहले हम लोग आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है बच्चों, ठीक है ना। अब ये पेज लिख लिया होगा आपने बच्चों, ये लिख लीजिए आप कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है बच्चों, जे इज इक्वल टू एफ इंटू टी। तो यहाँ पर फोर्स जो है बच्चों आपका अगर कांस्टेंट होता है तो एफ इंटू टी नहीं होता है कांस्टेंट बच्चों, तो इंटीग्रेशन करते हैं, एफ इंटू डी टी का इंटीग्रेट किया हमने बच्चों। देन ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन एम एल टी माइनस वन। और फोर्स का अगर ग्राफ को एक्स एक्स वाई एक्सिस पे और
टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया बच्चों, तो एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व गिव्स यू इम्पल्स। एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व गिव्स यू इम्पल्स, और इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो हमने लिखा बच्चों J इज इक्वल टू एफ इंटू टी एम वी माइनस यू बाई टी इंटू टी। तो J इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो J इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी। तो यहाँ से बच्चों एम ए लिखा है, ए को डीवी बाई डी टी लिखा है बच्चों हमने, ए को डीवी बाई डी टी लिखा है बच्चों। तो ये है आपका बच्चों एफ इज इक्वल J इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। तो ये बच्चों आपका है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल विच इज इम्पल्स। अच्छा बच्चों, मैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को डिफाइन करना चाहता हूँ, तो कोई बच्चा बोलेगा ऐसा क्या लिखना चाहिए स्टेटमेंट। अच्छा, आपने नोट कर लिया ना बच्चों, नोट करते जा रहे हो ना आप लोग? जी सर। चलिए बच्चों, So, impulse momentum theorem is defined as the rate of change of momentum for a given time interval, or it can also be defined as the difference between the final momentum and the initial momentum which is taking place in a particular time. चलिए सही बोला आपने। मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ बच्चों। ये आपने नोट कर लिया बच्चों? सबने सबने नोट कर लिया ये? आगे हाँ बढ़े। सर। हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या बच्चों? नहीं सर। कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है? हाँ, कुछ कंफ्यूजन है बच्चों? कुछ भी कंफ्यूजन हो आपको पूछिए, कहीं भी लगे सर फिजिक्स में ये पार्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लीज एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन। चाहे कभी मुझे थोड़ा टाइम दे के भी उस चीज को आपको समझाना पड़े तो आई हैविंग नो इशू। चलिए, कोई डाउट बच्चों, आगे बढ़े बच्चों। इस थ्योरम का नाम है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो मैंने अभी डिफाइन किया बच्चों, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब ये क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट नेट फोर्स, नेट इम्पल्स acting on a body is always equal to change in momentum। अब मैं बच्चों एक क्वेश्चन आप लोग से पूछने वाला हूं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे कि इम्पल्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो कौन बच्चा मुझे इम्पल्स की डायरेक्शन बताना चाहेगा? सर लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन So, the इम्पल्स। मोमेंटम। direction is the force is acting. अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको क्लियर ना हो तो? हम्म, सर लॉन्ग चेंज इन मोमेंटम। हम्म। तो बच्चों आपका पहला तो बोला अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, करेक्ट है बच्चों, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों। और दूसरा बच्चों हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से बोल सकते हैं अलोंग चेंज इन मोमेंटम, अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग चेंज इन मोमेंटम। जिधर चेंज इन मोमेंटम हो रहा है ना बच्चों, अलोंग चेंज इन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आप बोलेंगे सर ये कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाऊंगा जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स के ओर जाऊंगा बच्चों, ठीक है ना। तो इम्पल्स की डायरेक्शन बच्चों कैसे हो सकती है? या तो फोर्स जो इधर अप्लाई कर रहा है बच्चों, इम्पल्स डायरेक्शन वही होगी, और या तो होगी बच्चों मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन जिधर होगी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के अलोंग इम्पल्स की डायरेक्शन होगी बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इस पॉइंट के बाद में आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ बच्चों, कि मान लीजिए बच्चों ये मेरा मास था 2 kg का, और ये हाइट पे रखा हुआ था बच्चों 20 मीटर। 2 kg का मास 20 मीटर हाइट पे रखा हुआ है बच्चों। अगर मैंने बोला, अच्छा मैंने आपको इलास्टिसिटी के बारे में बता दिया ना, कि ये यस सर। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है बच्चों, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो आपको यहाँ पे बताना है बच्चों अब कि इम्पल्स इम्पार्टेड टू द फ्लोर,
इम्पल्स इम्पार्टेड टू द फ्लोर। इम्पल्स क्या होगा बच्चों, ये बताना है। तो क्वेश्चन हमने शुरुआत की है पहले क्वेश्चन की। इम्पल्स की वैल्यू आपको बतानी है। अगर एक बॉल, जैसे आपने देखा होगा ना बच्चों, किसी बॉल को एक छत से आप नीचे ड्रॉप करते हो, तो जितनी सर हाइट, 80। 80, 80 इज द राइट आंसर बच्चों। अब जिन बच्चों ने नहीं किया है सॉल्व, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। पहले मुझे निकालनी थी ये ब्लॉक जब पहुंचेगा यहाँ पर बच्चों, जस्ट बिफोर हिटिंग द सरफेस, व्हाट इज द वेलोसिटी। तो आप बोलेंगे सर ये तो आसान है सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस सर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ए तो सर मेरा जी है, एस मेरा सर 20 है। यू सर इनिशियली ड्रॉप किया है तो जीरो, इनिशियली ड्रॉप किया है तो जीरो। 2 इंटू 10 इंटू 20 सर, अंडर रूट। सो वेलोसिटी की वैल्यू हो गई सर मेरी 200 इंटू 400, 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी मुझे 20 मीटर पर सेकेंड पता चल गई बच्चों। 20 मीटर पर सेकेंड से इसने ग्राउंड को हिट किया, 20 मीटर पर सेकेंड से इसने ग्राउंड को हिट किया बच्चों। अच्छा, अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन होता बच्चों, तो मोमेंटम का चेंज कितना होता बच्चों। अगर ये इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता, तो आप बोलते सर तब तो ये चिपक जाता, लौटता ही नहीं वापस सर। तो सर फाइनल 0। मोमेंटम जीरो, इनिशियल मोमेंटम सर 40, चेंज इन मोमेंटम सर 40। बट बच्चों ये कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में बॉल टकराने के बाद जिस वेलोसिटी से टकराएगी बच्चों, क्या उसी वेलोसिटी से ऊपर लौटती है क्या बॉल बच्चों, उसी वेलोसिटी से ऊपर यस सर। लौटती है क्या बॉल। तो बच्चों उसकी वेलोसिटी अभी आपकी, तो कोई बच्चा बोलेगा सर इनिशियल 20 था, फाइनल भी 20 है सर, तो चेंज मोमेंट तो जीरो हो गया ना। सर डायरेक्शन में नेगेटिव बैठा ना सर सर। डायरेक्शन उल्टा है तो तो बच्चों 20 मोमेंटम इज माइनस और नॉट अ माइनस स्केलर 20। क्वांटिटी, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। तो आपको इसको डायरेक्शन के साथ ऐड करना चाहिए बच्चों। तो अगर आपने आने वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है बच्चों, तो जाने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। फाइनल मोमेंटम मेरा होगा बच्चों +2 इंटू 20, माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा बच्चों मेरा -2 इंटू 20। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जो लिखेंगे बच्चों वो होगा 40 + 40, विच इज 80 न्यूटन सेकेंड बोलिए या 80 kg मीटर पर सेकेंड बोलिए। ये इम्पल्स इम्पार्टेड टू द ग्राउंड हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ये तो हमने चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल निकाला सर, तो ये तो बॉल का मतलब इम्पल्स, बॉल का इम्पल्स हुआ ना सर। तो जितना बॉल पर इम्पल्स लग रहा है बच्चों, उतना ही बॉल पे लगेगा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। इसलिए बॉल का जो है इम्पार्टेड इम्पल्स भी इतना ही होगा बच्चों, ठीक है ना। बॉल का इम्पार्टेड इम्पल्स इतना ही होगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़े बच्चों, चलिए देखते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सिंपल ही देना चाहता हूँ, बट आपको अच्छे से देखना है क्वेश्चन को बच्चों। मान लीजिए एक ब्लॉक है बच्चों आपका, मास मान लेते हैं इसका 10 kg है, इसका है आपका 5 kg है, और एक बुलेट है बच्चों, बुलेट 2 kg का है, ठीक है ना। बुलेट इसमें इम्पिंज होता है बच्चों, मतलब बुलेट स्ट्राइक टू 5 kg मास एंड स्टिक टुगेदर। इसके साथ बुलेट बच्चों चिपक गया, ठीक है ना। बुलेट फाइनल सिचुएशन क्या होगी बच्चों। अच्छा, ये एक स्ट्रिंग से जुड़ा है बच्चों, ये एक स्ट्रिंग से जुड़ा है ए और बी, और आपका फाइनल सिचुएशन ये है बच्चों कि बुलेट इसके अंदर एम्बेड हो गया, हो चुका है बच्चों। और ये किसी पहले इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों इसकी, लेट इट बी यू, इनिशियल वेलोसिटी थी यू। अब बच्चों कुछ वेलोसिटी से चलने लगा होगा भी, तो आपको निकालना है फाइंड भी। ये 10 kg था बच्चों, ये 5 kg और ये 2 kg। चलिए निकालिए, तो कैसे निकालेंगे बच्चों। सर वो मास 10 kg है वो सेकंड ब्लॉक का। सेकेंड ब्लॉक का मास 10 kg है बच्चों, यस। सर U/70। हाउ मच यू। सर एक सेकंड सर। ठीक। सर 2U/70। 2u/3, ओके। अच्छा, मुझे पहले 1-2 मिनट का टाइम दे देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। पहले आप लोग सब सोच लीजिए। फिर वो यू क्या बुलेट का वेलोसिटी है? यू बच्चों बुलेट की वेलोसिटी है नहीं,
अगर यू बुलेट की वेलोसिटी नहीं होती बच्चों, तो ये इसको कुछ फाइनल, तो यू बुलेट की वेलोसिटी ही है बच्चों। यू जो है, मैं इसको इधर गलत बनाया है मैं, यू बच्चों बुलेट की वेलोसिटी है, ठीक है ना। ये दोनों ब्लॉक स्टेशनरी थे बच्चों, 10 kg और 5 kg रुका हुआ था। बुलेट की स्पीड ये थी बच्चों। अब आपको बताना है कि जब बुलेट इम्बेड कर जाता है इसमें बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी सिस्टम की क्या हो जाएगी, मतलब ए की क्या हो, 5 kg क्या हो जाएगी, 10 kg की क्या हो जाएगी बच्चों। तो चलिए सुनिएगा बच्चों ध्यान से। मैं आपको पहले लॉजिक दूंगा, फिर बाद में शॉर्टकट बता दूंगा बच्चों, सुनिएगा। तो बच्चों जब बुलेट इसके अंदर इम्बेड होके रुक गया बच्चों, तो बुलेट पर इस वाले 5 kg मास ने बच्चों फोर्स लगाया होगा ना बच्चों। किस तरह फोर्स लगाया होगा बुलेट पे बच्चों, 5 kg ने। क्या बुलेट पर 5 kg ने इस तरह फोर्स लगाया होगा बच्चों, और बुलेट ने 5 kg पर इस तरह फोर्स लगाया होगा क्या बच्चों। यस सर। तो आप बोलेंगे सर बुलेट का इनिशियल मोमेंटम तो 2u था सर, फाइनल मोमेंटम 0 हो गया। ये जो बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ ना सर, ये बहुत इंस्टेंटेनियसली हो रहा है सर। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो तो इम्पल्सिव है सर। तो जैसे इसने इसको स्ट्राइक किया सर, एक इम्पल्स जे जो है सर इस तरफ लग रहा था आपका, एक इम्पल्स जे इधर लग रहा था बच्चों, और क्योंकि बुलेट ने स्ट्राइक किया उसको, और इसकी वजह से एक इम्पल्स इस पे भी लगा जे इस तरफ बच्चों, ठीक है ना। तो अब बच्चों इस वाले इम्पल्स ने, ये जो जे वाला इम्पल्स है 10 kg पे, क्या किया होगा बच्चों। क्या इस 10 वाले इम्पल्स ने, इस जे ने 10 kg के मोमेंटम को बढ़ाया होगा क्या बच्चों। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो 10 kg का 0 था बच्चों, अब इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई होगी। मान लीजिए वो वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी आपकी भी हो गई होगी दोनों की सिस्टम की। तो बच्चों इसका मोमेंटम बढ़ाना। अब मैं बोलता हूँ बच्चों कि इस ए का मोमेंटम क्या होगा बच्चों, तो आप बोलेंगे सर ए का मोमेंटम भी बढ़ेगा, क्योंकि सर ए भी रेस्ट में था सर, यानी 5 kg भी रेस्ट में था सर, इसको वेलोसिटी मिल गई। तो बच्चों इन दोनों का जो मोमेंटम बढ़ा, तो मोमेंटम किसका घटा है बच्चों। आप बोलेंगे सर बुलेट का बुलेट। मोमेंटम घटा है, बुलेट का मोमेंटम घटा है। तब तो मैं ना तो बुलेट के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूँ बच्चों, ना 5 kg के लिए कर सकता हूँ, ना 10 kg के लिए कर सकता हूँ ना, अनटिल अनलेस आई डोंट नो कि बच्चों सिस्टम क्या है, आप मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। तो बच्चों यस आप सर। बोलेंगे सर एक काम करिए ना, तीनों को सिस्टम मान लीजिए सर। जब तीनों को सिस्टम मान लेंगे सर, तो जो भी इम्पल्स है सर वो भी इंटरनल फोर्स हो जाएगा सर, इम्पल्स भी इंटरनल फोर्स हो जाएगा सर। तो तीनों को मान मान लिया सिस्टम सर, तो मेरा नेट मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं सर। तो सर 2 kg का मास का मोमेंटम था 2u, 5 kg का सर 0 था 5 इंटू, और 10 kg का बच्चों 10 इंटू 0 था। ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बच्चों। और फाइनल मोमेंटम मैंने बोला जब बच्चों इससे इम्बेड हुआ, तो बुलेट का था 2 kg मास, 5 + 2 इंटू भी, और ये बच्चों 10 kg का मास भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, ठीक है क्या। तो आप बोलोगे सर ये हो गया आपका 7v + 10v, यानी सर 17v हो गया, इज इक्वल टू 2u ना बच्चों। यस सर। देखिए ध्यान से, तो v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2u/17। आप लोगों ने क्या बोला था, हाँ सर, तो ये वही समझ। तो 2u/17 इज द राइट आंसर बच्चों। 2u/17 जो है इज द राइट आंसर फॉर दिस वेलोसिटी। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान था, ये तो सर इतना आसान था कि हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व कर लिया बच्चों। लेकिन मैंने इसके पहले आपको क्या क्या चीजें बताई, कि बच्चों आपका जो इम्पल्स है वो टेंशन, आपका टेंशन यहाँ पे इम्पल्सिव है। यहाँ पे टेंशन इम्पल्सिव क्यों गया बच्चों, कि टेंशन ने सडन चेंज को अपोज कर दिया। कैसे बच्चों, जैसे कि ब्लॉक का अगर मैं देखूं, इस वाले बुलेट का मोमेंटम बच्चों घटा है, बुलेट का मोमेंटम घटा है, और ये इतनी तेजी से बच्चों 5 kg के अंदर गया कि इसने टेंशन को इम्पल्सिव बना लिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है बच्चों, फाइंड इम्पल्स ऑफ टेंशन, इम्पल्स ऑफ टेंशन, टेंशन का इम्पल्स बताइए बच्चों।
अच्छे से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा बच्चों। टेंशन यहाँ पे इम्पल्सिव है, ये तो समझ में आ गया हो बच्चों। जैसे बुलेट इम्बेड हुआ बच्चों, स्ट्रिंग टॉट हो गया होगा और चलने लगा होगा बच्चों 10 kg 5 kg एक डायरेक्शन में। तो उसी इम्पल्स को निकालना है बच्चों, जो टेंशन की वजह से हुआ। सर 20 U/17। 20 U/17 सर सुनिए बच्चों, मैं अगर सिस्टम ले लूं सिर्फ 10 kg को, हाँ सर, 10 kg को मैंने लिया बच्चों, तो इस पर इम्पल्स इधर लग रहा है और कोई फोर्स लग रहा है क्या बच्चों इस डायरेक्शन में? तो तो आप बोलेंगे 20 सर, U by 17। वेरी गुड, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बच्चों। तो इसका इनिशियल मोमेंटम था 0 सर, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी सर, मास 10 है सर, और वेलोसिटी सर आप ये वाली लिख लीजिए सर, 2U/17। तो बच्चे तो आसानी से बता पाएंगे सर 20U/17। बट मेरा मतलब ये सिर्फ नहीं था बच्चों कि आपको मैं ये सिंपल चीजें सिखाऊं। मेरा मतलब था क्या मैं अगर 5 kg को भी सिस्टम लूंगा तो यही इम्पल्स आएगा क्या बच्चों? नो सर। तो बच्चों 5 kg को सिस्टम अगर लिया मैंने तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे थे बताएंगे आप मुझे? 5 kg को सिस्टम लिया अगर आपने बच्चों तो क्या सर क्या एक फोर्स? टेंशन होगा सर और टेंशन और इम्पल्सिव फोर्स। एक हाँ तो आप सर, बोलेंगे सर कि इम्पल्सिव फोर्स ड्यू टू टेंशन जे होगा सर, और क्या होगा बच्चों? और सर बुलेट के लिए। एक बोलेंगे सर कि पहले सर इसका मोमेंटम जो था 0 था सर, इनिशियल मोमेंटम अगर मैं 5 kg की बात करूं बच्चों तो 0 था सर, बट फाइनल मोमेंटम सर जब बुलेट इसमें आ गया सर, तो बुलेट जब इसमें आ गया सर, इसकी मास तो हो गया 7 kg सर, और वेलोसिटी हो गई सर इसकी 2U/17। तो आंसर क्या बोला था आप लोगों ने, बताइए तो मुझे आंसर क्या बोला था बच्चों? सर आंसर तो हमें पता है, आपको तो यही निकालना है सर, आंसर 20U/17 आएगा कि नहीं। चेक करते हैं बच्चों। तो आप बोलोगे सर जे जो है इम्पल्स है इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है ना सर। तो यस। सर पहले मेरा सिस्टम का मोमेंटम की बात करें तो सर मोमेंटम अगर मैं बोलूं सिस्टम का क्या था मोमेंटम बच्चों बताओ तो? 0। सोच लीजिए। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मुझे, इनिशियल मोमेंटम अगर मैं लिख रहा हूँ बच्चों, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम तो 2U होगा ना। तो क्योंकि एक्चुअली बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, जो जीरो बोल रहे हैं जो बच्चे, सुनिएगा ध्यान से, जो बच्चे जीरो बोल रहे हैं मतलब उसने बुलेट को भी अवॉइड किया ना बच्चों, हाँ यस सर, उसने यस सर। बुलेट को भी अवॉइड किया ना, लेकिन फाइनली जब बुलेट इसके अंदर आ जाएगा बच्चों, तो क्या फाइनल मोमेंटम लिखोगे, सिर्फ इनिशियल नहीं लिखोगे क्या? आपको मेरी बात समझ हाँ में आ रही सर, है हाँ बच्चों सर, क्या? हाँ सर। तो पहले बच्चों आप लिखोगे सर बुलेट का मोमेंटम था सर m/u। सर मास तो सर बुलेट का 2 kg दिया था सर आपने, और सर स्पीड आपने u दी थी सर, स्पीड आपने u दी थी, यही तो इनिशियल मोमेंटम है बुलेट का सर। फाइनल मोमेंटम सिस्टम का हो जाएगा सर 5 + 2 7 kg सर, और ये चल रहा है सर 2U/17 से, 7 kg चल रहा है सर 2U/17 से, ठीक है बच्चों क्या? यस। 2U/17 सही लिखा ना, क्योंकि वेलोसिटी बच्चों ये हो गई है, दोनों सिस्टम की वेलोसिटी ये हो गई है बच्चों। तो 5 + 2 7 × 2 14U। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, मैं लिख रहा हूँ। अभी मैं नेगेटिव साइन का भी लॉजिक दे दूंगा आपको बच्चों, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है बच्चों, तो इम्पल्स को नेगेटिव मानना चाहिए क्या? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है हाँ बच्चों, तो इम्पल्स को नेगेटिव मानना चाहिए क्या? हाँ इम्पल्स को बच्चों मुझे नेगेटिव मानना चाहिए ना। तो मैंने -j = लिखा बच्चों, वैल्यू क्या है जरा देखें तो। आपने बोला सर ये 14U/17 है, 7 -2U ना सर। सर तो ये 14U/17 माइनस सर ये हो गया आपका 34U। तो सर ये -20U/17 इज इक्वल टू -j, जे से जे कट गया बच्चों, तो जे की वैल्यू आ गई 20U/17। तो बच्चा बोलेगा सर अगर मैं सिर्फ बुलेट को भी लेता तब भी तो यही आता सर। तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बुलेट को लीजिए तो भी आएगा,
आप एक मास 10 kg को लीजिए तो भी आएगा, और आप 5 kg को लीजिए तो भी आएगा बच्चों, इम्पल्स की वैल्यू वही आएगी। अच्छा, कोई बच्चा बुलेट को लेके बता पाएगा क्या बच्चों कि बुलेट को लेके कैसे आपने यही निकाला सर? बुलेट को लेके कैसे निकाला सर आपने यही? मैं सिर्फ बुलेट को सिस्टम लूंगा। अच्छा, बुलेट के लिए जो लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे? सोच के बोलिएगा। ये बुलेट है बच्चों। चलिए बात करेंगे बच्चों हम उसकी। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, टाइम तो ज्यादा है नहीं बच्चों, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है आज का। तो एक चीजें और, एक क्वेश्चन बार बार आपने अच्छे बुक्स में देखा होगा बच्चों, कि एक आपका हिंज है और एक आपकी स्ट्रिंग है बच्चों, ऐसे, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपने देखा होगा जरूर। अब यहाँ पे बच्चों आपने इसको वेलोसिटी दे दी u, और वेलोसिटी ऐसे दे दी बच्चों, ये सिर्फ आपका ऐसा चलता रहेगा, ठीक है ना बच्चों, इस लाइन के अलावा। ये लेंथ मैंने ले ली बच्चों आपका 3l/5, ठीक है बच्चों? ये लेंथ मैंने ले ली 3l/5। और बच्चों जब ये स्ट्रिंग टाइट हो गया बच्चों, ये लेंथ थी इसकी, इसकी लेंथ थी बच्चों, अच्छा ये 3l/5 ये वाला लेंथ है, और स्ट्रिंग की लेंथ है बच्चों l, स्ट्रिंग की लेंथ है l। तो आपको बताना है बच्चों, आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग गेट टॉट। स्ट्रिंग टाइट हो जाए बच्चों तो वेलोसिटी क्या है ये बताना है। चलिए बताइए तो कैसे बताएंगे? ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं बच्चों आपको। सर वो हिंज से कनेक्टेड है। हाँ, फिर से बोलिए। सर वो हिंज से कनेक्टेड है। हिंज से कनेक्टेड, ये हिंज से कनेक्टेड। ओके। सर 3u/5। कितना बच्चों, फिर से बोलिए। 3u/5। 3u/5। ओके, हाँ। सर अगर ये यहाँ पर टॉर्च जब हो जाएगा सर, तो वो मीन्स यू को दोनों कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक अलोंग द स्ट्रिंग और एक मीन्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। और अलोंग द स्ट्रिंग स्ट्रिंग सर वेलोसिटी नहीं रहेगा, क्योंकि सर स्ट्रिंग कांस्टेंट से हम ये कह सकते हैं, तो सिर्फ एक ही होगा वो परपेंडिकुलर में, वो यू साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालने से हमें मिल गया। देखिए बच्चों, लेंथ ये एल हो चुकी होगी ना, ये तो 3l/5 दिया होगा आपका। तो ये एंगल पहले बात करते हैं बच्चों कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा में लिखता हूँ इस ट्रायंगल से, l/3l/5 ना बच्चों, सॉरी 3l/5/l ना, 3l/5/l ना बच्चों। साइन 3/5 का मतलब ये 37 डिग्री है बच्चों, ठीक है ना? ये बच्चों कितना है, 37 डिग्री है। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं होती है बच्चों, तब तक इधर वेलोसिटी यू 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 ही रहेगी बच्चों। ये वेलोसिटी जस्ट बिफोर टाइट होने तक ये यू रही थी बच्चों, ठीक है ना? ये टाइट होने के पहले यू, जैसे ही टाइट हुआ ना बच्चों, तो वेलोसिटी जो है ना स्ट्रिंग के अलोंग तो जीरो हो जाएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए, आपका ये हिंज है, ये फिक्स है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से आपने क्या पढ़ा था बच्चों? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मैंने आपको पढ़ाया था ना बच्चों, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से आपको क्या पता है बच्चों? कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी जो है बच्चों चेंज नहीं होती है ऐसे।
तो स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग मैं देखूं इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चों पहले नहीं थी कुछ, अब फाइनली अगर ये टॉर्क है बच्चों तो ये वाली वेलोसिटी भी जीरो है। लेकिन आप बोलेंगे सर अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये 37, तो ये 37 है सर। सर यू का कंपोनेंट कुछ दिख रहा है मुझे सर, यू कॉस 37 डिग्री इधर आता हुआ। अब बच्चों क्या होगा, इधर इसका मोमेंटम इनिशियली जीरो था, अब फाइनली मोमेंटम तो ये हो जाएगा बच्चों। इस मोमेंटम का चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है बच्चों, एक इम्पल्स रिस्पॉन्सिबल है ना। तो इस जे की वैल्यू बच्चों, इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी मास इनटू, अच्छा इम्पल्सिव फोर्स की बात बात नहीं करेंगे बच्चों, मुझे वेलोसिटी से बतानी है ना, तो मैं वेलोसिटी पर ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ बच्चों। आपने एक चीज और पढ़ी थी बच्चों, इम्पल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करती बच्चों। इम्पल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करती। ये क्या होगा बच्चों, यू साइन 37 डिग्री, मतलब बच्चों u इंटू 3/5 में, ये बच्चों क्या होगा 4u/5 में। इधर बच्चों 4u/5 थी और इधर 3u/5 थी, ठीक है बच्चों क्या, देखिए ध्यान से। तो मुझे पता है बच्चों कि अगर मैंने बोला कि स्ट्रिंग के अलोंग इम्पल्स का जो चेंज हुआ है बच्चों, वो टेंशन के द्वारा जो ये इम्पल्सिव फोर्स टेंशन ने ना इसके अलोंग की वेलोसिटी को जीरो कर दी बच्चों। अब वेलोसिटी क्या रह गई बच्चों, क्या बताया था आंसर आप लोगों ने बच्चों, 3u/5। बताइए क्या आंसर बताया था आप लोगों ने बच्चों। यस सर, सी वैसे। तो बच्चों अब आपका फाइनल सिचुएशन में सिर्फ वेलोसिटी होगी बच्चों आपकी इसके अलोंग, जो होगी 3u/5। और ये वेलोसिटी बच्चों चेंज नहीं होती है, ये वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, क्या कोई और तरीका है सर इसको करने का, क्या कोई और तरीका है? कोई बच्चा बताएगा कोई और तरीका, कोई और तरीका बच्चों इसको करने का। बताइए बच्चों बताइए। तो एक बच्चा, कोई बच्चा बोल सकता है सर एक काम करिए, एक तरीका मुझे लग रहा है सर ना, कि सर स्ट्रिंग के लॉन्ग अगर आप मोमेंटम का कंजर्वेशन कर देते हैं, स्ट्रिंग के लॉन्ग अगर मोमेंटम का कंजर्वेशन कर देते हैं तो शायद सर हो जाए कुछ। तो देखते हैं बच्चों कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं बात बात करूंगा उसकी। तो स्ट्रिंग के अलोंग पहले बच्चों वेलोसिटी क्या थी, स्ट्रिंग के अलोंग पहले वेलोसिटी क्या थी बच्चों। तो पहले बोलेंगे मान लो ये इसकी हिंज का तो कुछ था नहीं बच्चों, ये मास जो था बच्चों, इसका मैंने मास कुछ नहीं दिया था ना, मैंने मास मान लो m kg ले लिया बच्चों, m kg मास ले लिया। तो आप बोलोगे सर m का अगर मैं देखूं स्ट्रिंग के लॉन्ग जो कंपोनेंट था सर, वो था सर mu cos 37 डिग्री, ठीक था बच्चों क्या, यही था ना बच्चों इनिशियल मोमेंटम अलोंग द स्ट्रिंग। और बच्चों हिंज का तो जीरो था बच्चों, हिंज का तो जीरो था बच्चों, एम यू आपका cos 37 स्ट्रिंग का था बच्चों। और बच्चों फाइनली क्या हो गई बच्चों, फाइनली मैंने बोला उसकी तरह वेलोसिटी हो गई आपकी, अगर मैंने बोला फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों उसकी, तो आप बोलोगे सर फाइनली इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कुछ भी हो गई होगी सर, फाइनली वेलोसिटी कुछ भी हो गई होगी। तो आप बोलेंगे सर लेकिन सर वो तो मेरा स्ट्रिंग के अलोंग जो कंपोनेंट था सर, मैं ऐसा बोलूं, अच्छा चलिए इसको मैं ना हिंज वाले से नहीं एक और क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ ये जो मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है ना। अच्छा पहले मैंने क्या किया बच्चों इसमें, इनिशियल यू को मैंने ब्रेक किया दो पार्ट में, सुनिएगा ध्यान से, एक अलोंग द स्ट्रिंग और एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अलोंग जो चेंज मोमेंटम आया था ना बच्चों, उसको इस इम्पल्स की वजह से, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, तो मैं इसको सिंपली बोल सकता हूँ J इज इक्वल टू
mu cos 37 डिग्री। ठीक है बच्चों, जे जो है डायरेक्टली वैल्यू जे की ये आ गई, ठीक है ना। तो इम्पल्स की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ से। और इस इम्पल्स ने इसको बैलेंस कर दिया बच्चों आपका। तो कोई भी वेलोसिटी आपकी स्ट्रिंग के अलोंग नहीं बची। अब आपका स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है 3u/5 है। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन इसी टाइप का देता हूँ। अब हिंज ना देके बच्चों यहाँ पे मैंने मास दे दिया m का, और यहाँ पे मास दे दिया बच्चों मैंने 2m का। m मास है बच्चों, ये 2m मास है, ये इधर चल रहा है बच्चों। और ये आप ले लो, मैं कुछ डेटा चेंज कर दे रहा हूँ। स्ट्रिंग की लेंथ है बच्चों, अच्छा ये वाली लेंथ है, मैंने इसको मैंने बोला बच्चों 5 मीटर। और ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है बच्चों वो 10 मीटर है। ठीक है ना। अब आपको बताना है बच्चों, व्हेन स्ट्रिंग गेट टॉट, व्हाट इज द वेलोसिटी of the particle just after the string, velocity of the particle, velocity of the particle when string just dot। ठीक है बच्चों, बताइए तो। 10 kg, सॉरी 2 kg m और 2m का है बच्चों। हेलो। अच्छा डिस्कनेक्टेड है, एक सेकंड। ओके, आई विल चेक। Remember you are here now. Sir, Yes, sir. Remember now you are here. Remember, actually you understood the question, what the question is saying. ये सर मैं बोल रहा हूँ, मैं कहाँ तक था? आप जब बोल रहे थे ना, मतलब लेंथ के अलोंग इम्पल्स का कोई चेंज नहीं होगा, उसके बाद वो डिस्कनेक्टेड हो गया था। उसके बाद आप क्या बोल रहे थे? मैंने बोला था कि मोमेंटम का जो चेंज स्ट्रिंग के अलोंग हो रहा है बच्चों, उसको ये इम्पल्सिव फोर्स, जो इम्पल्स टेंशन का था उसको बैलेंस कर दे रहा है बच्चों। मतलब इम्पल्स टेंशन के द्वारा जे अगर मैंने लिया, तो वो जे की वैल्यू बच्चों इस mu sin cos 37 के बराबर होगी। तो इस इम्पल्स ने बच्चों इसकी वेलोसिटी के चेंज को तो नलीफाई कर दिया। एक ही वेलोसिटी रही बच्चों जो आपकी u sin 37 थी। मैंने यही बोला था बच्चों, ठीक है। मतलब जो ये, आप वापस से बोलेंगे, क्या बोले? मैंने यही बोला, वेलोसिटी जो है बच्चों अब आपकी सिर्फ 3u/5 बची, जो स्ट्रिंग के लेंथ के परपेंडिकुलर है। इधर अच्छा बच्चों, इधर अगर वेलोसिटी रहेगी तो स्ट्रिंग टूट नहीं जाएगा बच्चों। देखिए तो, स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या बोलता है बच्चों, स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग न तो आपका ये इंक्रीज हो सकता है, ना ये डिक्रीज हो सकता है बच्चों। तो स्ट्रिंग की लेंथ को फिक्स रहनी है बच्चों। तो अगर आपने इधर वेलोसिटी दे दी तो ये टूट जाएगा ना। तो ये वेलोसिटी को कौन बैलेंस करता है बच्चों, ये इम्पल्सिव फोर्स बैलेंस करता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है बच्चों, ट्राई करिए, आंसर बताइए जल्दी से।
चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग ध्यान से। सुनिएगा, जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएंगे बच्चों, तो ये तो आपका 5 है, ये बच्चों कितना हो गया आपका 10। तो एंगल किसकी बात करें बच्चों, दिस एंगल की। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5/10, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्या थीटा आपकी आ गई 30 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे बच्चों, दिन सुनिएगा ध्यान से। सर ये यू थी, अगर इधर इसकी वेलोसिटी यू दे दी थी हमने बच्चों, इसको आप कुछ वैल्यू भी दे सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला सर यू की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दे दी, तो भी चलेगा, यू को यू भी ले सकते हैं बच्चों। तो मैंने बोला अगर 10 मीटर पर सेकेंड दे दी बच्चों इसको, तो ये 10 के कंपोनेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर दो बच्चों। एक कंपोनेंट आपका स्ट्रिंग के अलोंग होगा बच्चों, तो ये 30, तो ये 30 बच्चों, ये 10 cos 30 होगा। और एक बच्चों स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होगा, मैंने वेलोसिटी को ब्रेक किया है बच्चों, 10 sin 30 डिग्री। ये हो गया बच्चों आपका 5, ये हो गया 5√3। ठीक है बच्चों, मेरा स्ट्रिंग के अलोंग की वेलोसिटी मुझे पता चल गई, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी पता चल गई मुझे। अब बच्चों देखिए क्या होगा, अगर मैं बात करूं पूरे सिस्टम की, तो अगर इसको वेलोसिटी इधर मिली है बच्चों, तो यहाँ पे हिंज है ना, तो इसको वेलोसिटी भी इधर मिली होगी ना। मान लीजिए ये वेलोसिटी इधर है 5√3, तो इसको भी वही वेलोसिटी मिली होगी बच्चों 5√3। अब मैं बोलूं कि ये जस्ट पहले की बात थी बच्चों, जब स्ट्रिंग टाइट नहीं हुआ। जैसे टाइट हुआ स्ट्रिंग बच्चों, उसकी वजह से इसको एक वेलोसिटी भी मिली, इसको वेलोसिटी भी मिली। पहले इसको कुछ वेलोसिटी नहीं मिली होगी, जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं होगा बच्चों, ये 1 m मास को कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी। तो आप बोलेंगे सर अब क्या करें। अब सर इस वाले के मास की बात करें सर 2 m का, सर 2 m का मोमेंटम क्या हो रहा है सर, इसका मोमेंटम घट रहा है सर, इसका मोमेंटम बढ़ रहा है सर, लेकिन सर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और अब मैं बच्चों क्या करना चाह रहा हूँ, इस स्ट्रिंग के लॉन्ग मोमेंटम का कंजर्वेशन करना चाह रहा हूँ, स्ट्रिंग के लॉन्ग मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो अप्लाइंग, याद रखिए बच्चों, मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, एक्स के वाई के। अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, आप पूरा लिख लीजिए। अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन along string। तो आप बोलेंगे सर स्ट्रिंग के अलोंग इनिशियली तो जो था एम मास का ब्लॉक में सर, वो सर जीरो वेलोसिटी से मूव कर, प्लस अब ये 2 m का मास का ब्लॉक था ना सर, उसकी स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी थी सर 5√3। और फाइनली सर इन दोनों की वेलोसिटी m की भी v हो गई सर, और 2m की भी v हो गई। तो दिस इज नथिंग बट 2m 5√3/3m इज इक्वल टू v। तो ये तो बच्चों हो गया मेरा v इज इक्वल टू 10/√3 मीटर पर सेकेंड। तो कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मुझे ये पता चल गया वेलोसिटी, तो दूसरा तरीका भी है वेलोसिटी निकालने का 10/√3, या यही तरीका है सर। तो दूसरा तरीका है क्या, देखिए तो वेलोसिटी मेरा 10/√3 आया स्ट्रिंग के अलोंग। तो बच्चा ऐसा बोल सकता है सर एक काम करिए ना, ये 10/√3 जो वेलोसिटी आई ना, इसको इसको मैं सर एक तरीके और से ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। कैसे बच्चों, सर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम किसके लिए लिखना है बच्चों में। तो आप बोलोगे सर आप एक काम करिए, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अभी सर मैंने स्ट्रिंग के अलॉन्ग लगाया है ना, ये मैं 2 m के लिए लगाता हूँ सर। जो 2m मेरा u से मूव कर रहा था, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था बच्चों। अच्छा यहाँ पे वैल्यू मैंने u को 10 लिया है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा बच्चों आपका, इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल फॉर, मैं लिखता हूँ फॉर 2m मास, पी इनिशियल क्या हो जाएगा बच्चों 2m × 10, यानी कि 20m हो जाएगा इनिशियल मास।
मोमेंटम, और वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? 10 थी। मास कितना था बच्चों? 20 m केजी मीटर पर सेकेंड। पी फाइनल क्या होगा बच्चों? फाइनल मोमेंटम हमने बोला भाई v हो गया था ना बच्चों इधर। इसका देखिए, इस सिस्टम का जो मास है बच्चों, ये जो 2m था, ये बच्चों मूव कर रहा था इससे। फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। मैं फाइनल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो आप बोलेंगे सर फाइनल मोमेंटम 2m मास का अगर बात करें, 2m मास का सर कंपोनेंट, 2m मास का कंपोनेंट सर, एक वेलोसिटी इस तरफ है, एक वेलोसिटी इस तरफ है सर। तो इसका मोमेंटम क्या लिखोगे, जरा बताओगे मुझे कोई? तो बोलोगे सर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो सर इम्पल्स आपने बोल दिया इस तरफ है सर, जे। और सर उस तरफ को आप नेगेटिव अगर मान लेते हैं, मैं लिखता हूं जे इज इक्वल टू, -j आप बोलोगे सर 2m का मास है ना, वेलोसिटी थी सर कितनी इसकी? वेलोसिटी थी, अच्छा एक काम करो, 10/√3 वेलोसिटी फाइनली हो गई है इसकी। इनिशियल वेलोसिटी थी 5√3, और फाइनल वेलोसिटी हो गई बच्चों 10/√3। सुनिएगा ध्यान से, ये फाइनल वेलोसिटी थी बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 2m की, 2m की इनिशियल वेलोसिटी थी 5√3। जरा देखते हैं बच्चों क्या आएगा। आपने बोला सर ये तो हो गया आपका √3 नीचे, √3 नीचे, एंड दिस विल बी 20m माइनस, आप बोलेंगे सर 10 × 3m। मैंने 10 कैसे लिखा? 5 × 2, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 लिख दिया बच्चों, इज इक्वल टू -j। -j इज इक्वल टू -10/√3m, and velocity is equal to, I got this, m into v. So what actually I am trying to say here, कि बच्चों अगर किसी भी एक मास के लिए आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हो तो भी आंसर आएगा आपका, और ओवरऑल सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हो तो भी सिस्टम के लिए आपका इक्वेशंस ऑलमोस्ट वही आएंगे। तो यहाँ से बच्चों हम लोग आगे कल करते हैं थोड़ा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू बच्चों। सर ये, सर हाँ, सर, ये जो वेलोसिटी आपने निकाला है 10/√3, वो तो वेलोसिटी अलोंग द रोप होगा ना, या फिर हॉरिजॉन्टल का ही वेलोसिटी है?